Lovely. Awesome. Thank you so much. Perfect. Perfect. So I want to show you 3 methods here. Have a look at it very carefully. समझना ध्यान से 3 मेथड बताने वाली हूँ. And starting with overhand shuffle. So this is one of the most common method जो usually हम देखते हैं सबको करते हुए. Overhand shuffle is this. You shuffle the cards, shuffle, shuffle, shuffle. Simply shuffle it. As long as you wish to shuffle it, आप आराम से shuffle कर रहे हो. जब आपको अंदर से आवाज आए बस और नहीं करना, you feel like I'm done with shuffling, रुक जाओ. Shuffle कर लिया, उसके बाद you spread the cards out like this. Simply आपने कार्ड spread out किए. Spread out करने के बाद pick one card. Whatever card you are picking becomes your answer. ठीक है? Clear everybody with me? I want everybody participating in the chat box so that I know it's clear to you guys. आपने shuffle किए कार्ड, spread किए, then you are picking one card. Whatever card you are picking is the answer for you. Now the next method that we have is cut the pile shuffle. Okay, so we are going to cut the deck into multiple piles. Let me show that. आप कार्ड्स को ऐसे मल्टीपल पाइल्स में डिवाइड करोगे. आपने सारे कार्ड मल्टीपल पाइल्स में डिवाइड कर दिए. अब जहां आपका मन कर रहा है यू आर गोइंग टू bring it back together और सारे कार्ड्स को इकट्ठे एक साथ you bring it there back together and we are done. पहला कार्ड उठा लोगे, उसके बाद whatever the card is becomes your answer. Make sure the cards are facing you. That's the right way of doing it. तो multiple piles में हम करेंगे and then we are going to bring it back together. We are good to go. All clear so far? जब तक आपका मन करेगा तब तक आप multiple piles में उसको divide करोगे, right? Now divide the deck into two. This is the third method guys. Divide the deck into two में हम क्या करेंगे? अब इसमें हमने क्या करना है? हमने दो पार्ट्स में deck को divide करना है. So this is the top half, this is the bottom half. We'll keep the bottom half aside. Top half जो है उसका last card हम pick करेंगे. So whatever the last card is, that becomes your answer, right? जो भी आपका last card होगा top half का, that is your answer. आया सबको समझ? आप इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट में, टॉप हाफ का लास्ट कार्ड इज योर आंसर. परफेक्ट, लवली, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़े से एथिक्स समझ लेते हैं क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी डू रीडिंग्स वी शुड फॉलो सम रूल्स. कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स होते हैं दैट वी शुड फॉलो. अब वो क्या क्या होते हैं, लेट्स गेट इनटू दैट. तो लेट्स सी व्हेन यू शुड अवॉइड डूइंग रीडिंग. पहले ये समझते हैं कि कब कब आपको रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए. पहली बात, when you are tired or exhausted or if you are unwell, आपकी तबीयत खराब है, आप थके हुए हो, आप बहुत टायर्ड हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो, आप रीडिंग नहीं करोगे. Why? क्यों नहीं करेंगे? क्या रीजन होता है? Because you are low on energy. You are low on energy. अगर आपकी एनर्जी लो है तो वो रीडिंग काम नहीं आएगी. उससे आप और अपने लिए you are adding on the baggage. You will not get answers. प्लस आप और कंफ्यूज जाओगे, फियर जनरेट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, राइट? आपको समझ ही नहीं आएगा आंसर क्यों नहीं आ रहे, तो हम रीडिंग नहीं करेंगे. Another thing, when you heard a shock or maybe you had a bad news, आपको पता चला मान लो बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, या फिर कुछ भी ऐसे बुरी खबर सुनी, तो हम रीडिंग नहीं करेंगे. I personally give myself some time to settle first, because doing the reading for someone with having a bad news, by having heard a bad news, I am not only doing injustice with the person, I am doing injustice with myself also. Because उससे मैं खुद को भी डैमेज कर रही हूँ, रीडिंग गलत आएगी क्लाइंट के साथ तो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, साथ ही साथ आप सामने वाले के पैसे, सामने वाले का टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हो और उनकी लाइफ इस पे डिपेंड कर रही है. तो हम ये अवॉइड करेंगे. Then we are gonna avoid doing reading right after drinking. अभी हमने अल्कोहल की बात की थी. So when you are drinking, you have to give yourself time of at least 24 to 48 hours ताकि alcohol comes out of your system, right? तो आप वेट करो, फ्लश आउट होने दो अल्कोहल अपने सिस्टम से, then do the reading. Why do I say that? When we consume alcohol, हम लो वाइब्रेशन में चले जाते, we do not think right. तो जब हम काम भी ठीक से नहीं करते कोई भी, तो रीडिंग कैसे करें, right? We get into that different zone when we are drinking, when we are consuming alcohol. तो हम उतना टाइम देंगे and हम अवॉइड करेंगे ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सर्कमस्टांसेस में रीडिंग करना. अब किसके लिए रीडिंग्स नहीं करनी, who you should avoid doing reading for, वो समझ लेते हैं.
या we are going to avoid doing reading for people who are drunk. Similarly, जैसे आप low on vibration हो, सामने वाला भी low on vibration है. Who are sick. Similarly, जैसे आप low on vibration हो, सामने वाला भी low on vibration. We are going to avoid reading for people who are not present during the reading. क्योंकि अगर अब ये समझना, ऐसा नहीं प्रेजेंट का मतलब ऑन कॉल है तो रीडिंग नहीं करेंगे, सामने नहीं है फिजिकल. इसका मतलब ये है आप उनकी रीडिंग नहीं करोगे जिन्होंने आपसे रीडिंग करने के लिए नहीं कहा. यू आर नॉट गोइंग टू पीक इनटू एनीबडी एल्सेस लाइफ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है. नहीं करेंगे. मेरे एक्स की अभी जो करंट पार्टनर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बता दो, बिल्कुल रीडिंग नहीं करेंगे. आपको क्या लेना देना, एक्स था ना, चला गया ना लाइफ से, जाने दो ना उसको, जीने तो खुद भी जियो. So you're not gonna peek into anybody else's life. If you're doing so, you are adding bad karma to yourself. तो कोई फायदा नहीं है, ना उसको फायदा मिलेगा ना आपको मिलेगा. If it's your son and daughter, that person is directly connected to you. If it's your husband, if it's your wife, if it's your sister, directly connection है. उनकी लाइफ में कुछ भी होगा आपको अफेक्ट करेगा, कर सकते हो. अब आपकी बहन के हस्बैंड, उसकी शादी होगी, उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ भी नहीं. So you're not gonna do the reading until your sister is asking you to do that. Cool? All clear so far? Perfect. Also avoid doing reading for people जो आपको टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है यार. It's working for me, it's working for all of us who are doing it, who are using this wonderful tool. अगर ये हमारे लिए काम कर रहा है, सामने वाले को विश्वास है तो रीडिंग करो, नहीं विश्वास है वैसे भी उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा. आप सिर्फ अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करो. तो किसी को बदल तो सकते नहीं है ना, तो सिर्फ उसी के लिए रीडिंग करते हैं जो इन चीजों को समझ सकता है. ओके, परफेक्ट. चलो, तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, व्हिच इज हाउ टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड बिल्ड इंट्यूशन.